Hello, everyone. So, this lecture is about liver functions, and in this lecture, I'm going to discuss mainly about functional and structural details of liver, bilirubin metabolism. I will discuss liver diseases, and lastly, liver function tests. So, let's proceed. So, liver is a central metabolic organ. ये हम सबको पता है कि liver जो है वो central metabolic organ है. ये main metabolic reactions जो है वो liver में होते हैं. The main functions of liver are metabolism of carbohydrates, metabolism of fats, metabolism of drugs, synthesis of various important proteins, storage of various metabolites, and excretion of lipids and bilirubin. So we know that जो liver है इसमें it is a central metabolic organ. So इसमें carbohydrate metabolism जो है that also takes place. अब इसमें we know that glycogen synthesis, gluconeogenesis, ठीक है, ये सब liver में होता है, ठीक है. Then metabolism of fats, we know that liver जो है उसमें fats का synthesis होता है, fatty acids are synthesized, cholesterol is synthesized, and lipoprotein metabolism में liver का role रहता है. Then it is involved in metabolism of drugs, ठीक है ना. ज़्यादातर जो बाहर से हम लोग drugs लेते हैं, ज़ीनोबायोटिक्स जो हैं, इन सब का मेटाबॉलिज्म जो है वो लिवर में होता है, ठीक है. आपने सुना होगा कि ज़्यादातर जो ड्रग्स होती हैं दे आर हेपेटोटॉक्सिक, ठीक है. हेपेटोटॉक्सिक यानी कि लिवर के ऊपर उनका टॉक्सिक इफेक्ट होता है. तो जितने भी ड्रग्स हम लोग लेते हैं उनका मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है. देन लिवर जो है दैट इज इन लिवर वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड. जैसे एल्ब्यूमिन जो है दैट इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर. बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स लिवर में सिंथेसाइज होते हैं और भी बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो केवल लिवर में ही सिंथेसाइज होते हैं. ओके, देन ऑल्सो लिवर जो है दैट इज अ स्टोरेज साइट फॉर वेरियस मेटाबोलाइट्स. बहुत सारे ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जो लिवर में स्टोर होते हैं. इसमें एक एग्जांपल है विटामिन B12. हम डाइट में जो विटामिन B12 लेते हैं दैट इज मेनली स्टोर्ड इन द लिवर. दिस इज वन एग्जांपल. Also, liver जो है that is involved in excretion of lipids as well as bilirubin. इसको हम आगे देखेंगे. Okay, so moving further. Now, this is about structural detail of liver. ठीक है, so on right hand side you can see the structure of liver. Liver जो है, liver का जो weight है that is 1.5 kgs in adult. किसी भी एक adult human being में approximately 1.5 kg weight होता है liver का. ठीक है. लिवर हैज 4 lobes called right lobe, left lobe, quadrate and caudate. ठीक है. राइट, लेफ्ट, quadrate and caudate. तो 4 lobes होते हैं लिवर में. ठीक है. तो यहाँ पे ये एंटीरियर व्यू है लिवर का. तो इसमें 2 lobes दिख रहे हैं. राइट लोब which is a bigger one and then there is a left lobe and then to the other side there is the quadrate and the caudate lobe. Now the liver है that lies just under the diaphragm on the right side. हमारा जो diaphragm है उसके just नीचे right side में liver रहता है. ठीक है. Then importantly blood enters the liver via hepatic artery and portal vein. ठीक है. तो जो liver है organ उसमें जो blood enter करता है body से वो hepatic artery के थ्रू करता है और portal vein के थ्रू करता है. तो जो hepatic artery है तो इट्स आर्टरी. तो ये क्या है, न्यूट्रिशियस ब्लड विद ऑक्सीजन ये हार्ट से लिवर के पास पहुंचाती है. ठीक है. दिस आर्टरी कैरीज द ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड अदर न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लिवर. और जो पोर्टल वेन है that basically carries nutrient rich blood from gastrointestinal tract to the liver. Okay, so portal vein जो है that is not unlike other veins. ये liver से heart की तरफ blood नहीं लेके जाती. ये जो gastrointestinal tract है वहां से blood carry करती है which is a nutrient rich blood और वहां से blood carry करके liver के पास लेके आती है. ठीक है. तो gastrointestinal tract से nutrient rich blood is carried to the liver through portal vein. ठीक है. Whenever we eat food तो उसमें बेसिकली जितना हम लोग जितना भी ग्लूकोज हम कंज्यूम करते हैं उसका 70% ग्लूकोज जो है खाने के तुरंत बाद लिवर के पास पहुंच जाता है थ्रू दिस पोर्टल वेन. ओके, एंड now this is the structure of a liver lobule
and this is called classic liver lobule, and you can see the structure is hexagonal. ठीक है, तो जो लिवर लॉब्यूल है वो है हेक्सागोनल शेप का है। तो इसमें क्या है कि बीच में सेंट्रल वेन है और इस वेन के अराउंड हेपेटोसाइट्स जो हैं, these are all hepatocytes. These hepatocytes are arranged in sheets. ठीक है, हेपेटोसाइट शीट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, तो एक एक शीट जो है, एक हेपेटोसाइट शीट जो है वो सिंगल सेल से बना है, यानी एक सिंगल हेपेटोसाइट्स मिलके एक शीट बना रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रल वेन के अराउंड ये हेपेटोसाइट्स हैं, हेपेटोसाइट शीट्स आर देयर। इन शीट्स के बीच में स्पेसेस हैं। ठीक है, इन स्पेसेस को कहते हैं साइनोसॉइड्स। ठीक है, विद इन द शीट्स के बीच में जो स्पेसेस हैं ये साइनोसॉइड्स हैं। नाउ इसमें क्या है कि जो अब ये लॉब्यूल है, इसके अंदर सेल्स हैं, तो अब इसके अंदर जो ब्लड आता है वो कैसे आता है? ब्लड कम्स फ्रॉम द पोर्टल वेन, जो नीले रंग की है। ठीक है, ये जो लॉब्यूल है इनके आउटसाइड, इस लॉब्यूल के आउटसाइड ये पोर्टल ट्रायड प्रेजेंट है। ठीक है, पोर्टल ट्रायड इज देयर। तो पोर्टल ट्रायड में क्या है? देयर इज अ पोर्टल वेन, जो ये ब्लू कलर की है ये पोर्टल वेन है। देन देयर ये जो रेड कलर की है ये है हेपेटिक आर्टरी, और जो ग्रीन कलर का ये है बाइल डक्ट। दिस इज अ बाइल डक्ट। ठीक है, तो जो ब्लड एंटर करता है इस लोब्यूल में, ठीक है, वो ब्लड एंटर करता है थ्रू पोर्टल वेन एंड हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी के थ्रू ब्लड एंटर करता है। दिस इज पोर्टल वेन एंड हेपेटिक आर्टरीज फॉर द इनफ्लो ऑफ ब्लड, इनफ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, फ्लो ब्लड जो यहाँ से फ्लो होके अंदर आता है। ठीक है, वहीं जो हेपेटोसाइट्स हैं, हेपेटोसाइट्स में बाइल बनता है। ठीक है, और हेपेटोसाइट्स जो है अपना बाइल जो सिक्रीट करते हैं वो साइनोसॉइड्स के थ्रू होते हुए ये बाइल डक्ट से बाहर आता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन दिखाया हुआ, ग्रीन कलर का डायरेक्शन दिखाया है। ये बाइल जो है दैट flows out from the liver lobule through bile duct। यहाँ से बाइल यानी यहाँ से ब्लड आता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो है वो पोर्टल वेन से और हेपेटिक आर्टरी से इसके अंदर आता है, लोब्यूल के अंदर आता है। जितने हेपेटोसाइट्स होते हैं वो सब वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, कंज्यूम करते हैं, और फिर विद इन देम बाइल इज फॉर्म्ड, और फिर वो जो बाइल है दैट इज सिक्रीटेड टू द बाइल डक्ट। ठीक है, यहाँ से सिक्रीट होता है साइनोसॉइड्स के थ्रू, वो बाइल डक्ट से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ है डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो इज फ्रॉम पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी टू द सेंट्रल वेन। ठीक है, यहाँ से अंदर की तरफ है, और जो बाइल डक्ट है और जो बाइल बनता है उसका जो डायरेक्शन है वो आउटफ्लो जो है वो है सेंट्रल वेन से, या नॉट सेंट्रल वेन, तो हेपेटोसाइट से बाइल डक्ट की तरफ। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग ओवर टू बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। अब बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म में लिवर का सेंट्रल रोल रहता है। बिलीरुबिन को एक्सक्रीट आउट करने में लिवर का मेन रोल रहता है। एंड बिलीरुबिन जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट एज वेल। तो इसमें क्या है, बिलीरुबिन जो है दैट इज अ येलो कलर्ड कंपाउंड। ओके, बिलीरुबिन क्या है? येलो कलर्ड कंपाउंड है, एंड इट इज अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जब उसका जो ब्रेकडाउन होता है तो उससे बिलीरुबिन फॉर्म होता है, विच इज अ येलो कलर्ड कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि जो ओल्ड और डैमेज आरबीसीज होते हैं दे आर ब्रोकन डाउन इन लिवर रिलीजिंग हीमोग्लोबिन। आपको पता है कि जो आरबीसीज हैं उनमें हीमोग्लोबिन होता है, और आरबीसीज की जो लाइफ साइकिल होती है दैट इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 120 डेज। तो 120 डेज के बाद आरबीसीज जो है ना, ओल्ड आरबीसीज को दे हैव टू अंडरगो डेथ एंड दे आर देन रिप्लेस्ड बाय द न्यू आरबीसीज। तो आरबीसीज की डेथ कहाँ होती है, इनका ब्रेकडाउन कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। ठीक है, स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। तो मेच्योर आरबीसीज 120 डेज के बाद दे मूव टू स्प्लीन, और स्प्लीन में इनका ब्रेकडाउन होता है। तो आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एज वेल एज हीम ग्रुप। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन बनता है, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट एंड हीम ग्रुप इज देयर विच इज अ पोरफायरिन रिंग। ठीक है, आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग होता है हीम।
अब जो हीम होता है, ठीक है, उसका डिग्रेडेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो उसमें आयरन एटम होता है वो रिकवर हो जाता है, ठीक है, दैट इज रिसाइकल्ड। और जो पोर्फायरिन रिंग होती है दैट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू बिलीवर्डिन एंड देन इट इज रिड्यूस्ड टू बिलीरुबिन, ठीक है। तो जो हीम ग्रुप होता है दैट इज डिग्रेडेड फाइनली टू बिलीरुबिन विद इन द स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर ये ब्रेक डाउन होता है। स्प्लीन में हीमोग्लोबिन जो है दैट इज ब्रोकन डाउन, उसमें जो हीम ग्रुप होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू बिलीरुबिन, राइट। So now interesting fact about this bilirubin metabolism is, yeah, breakdown of bilirubin, the breakdown of hemoglobin is that 1 gram hemoglobin gives approximately 35 milligrams of bilirubin, यानी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होगा तो उससे हमें 35 मिलीग्राम बिलिरुबिन मिलता है, ठीक है। Now 80% of the bilirubin which is derived from breakdown of mature RBCs, ठीक है, जो मेच्योर आरबीसीज के ब्रेकडाउन से हमें 80% बिलिरुबिन मिलता है, और उसके अलावा जो 20% बिलिरुबिन है दैट कम्स फ्रॉम डैमेज्ड आरबीसीज एंड साइटोक्रोम्स। नाउ बिलिरुबिन जो है दैट इज अ लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल, ठीक है, बिलिरुबिन इज अ लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल, दैट मीन्स इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो स्प्लीन में हीमोग्लोबिन जो है दैट इज ब्रोकन डाउन, or heme group of the hemoglobin is broken down to form bilirubin, and bilirubin is a water insoluble molecule. फर्दर इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि बिलिरुबिन जो है वो वाटर इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल है, इट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम स्प्लीन टू द लिवर, क्योंकि अब स्प्लीन के बाद फर्दर बिलिरुबिन का जो मेटाबॉलिज्म है फॉर एक्सक्रीशन इट हैपेंस इन द लिवर, ठीक है। स्प्लीन में बिलीरुबिन बनेगा, अब बिलीरुबिन को फर्दर आगे मेटाबोलाइज होना है या उसको एक्सक्रीट आउट होना, बेसिकली बिलीरुबिन को एक्सक्रीट आउट होना है बॉडी से, तो फॉर एक्सक्रीशन बेसिकली इट गोज टू द लिवर, तो लिवर में उसका फर्दर मेटाबोलिज्म होता है। लेकिन अब क्योंकि बिलीरुबिन एक लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, कैसे वो स्प्लीन से लिवर में आएगा, कैसे आता है लिवर में, विद द हेल्प ऑफ एल्ब्यूमिन। So it is albumin which carries bilirubin from spleen to the liver. Now let's have a look on the events that take place during bilirubin metabolism. तो सबसे पहले क्या होता है कि स्प्लीन में बिलिरुबिन बन जाता है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन जो है इट बाइंड्स टू द बिलिरुबिन एंड कैरीज इट टू द लिवर वाया हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। रिमेंबर हेपेटिक आर्टरी, लिवर के अंदर जो ब्लड जाता है वो हेपेटिक आर्टरी से जाता है और पोर्टल वेन से जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि स्प्लीन में बिलिरुबिन बनता है स्प्लीनोसाइट्स में, तो अब एल्ब्यूमिन का काम होता है बिलिरुबिन को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम स्प्लीनोसाइट्स टू द हेपेटोसाइट, लिवर में लेके जाना है। तो एल्ब्यूमिन जो है वो बाइंड करेगा बिलिरुबिन को एंड देन इट कैरीज इट टू द लिवर वाया हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, हेपेटिक आर्टरी के थ्रू वो लेके जाएगा। देन हेपेटोसाइट्स दे हैव रिसेप्टर्स फॉर बिलिरुबिन, जो हेपेटोसाइट्स होते हैं उनके सरफेस पे बिलिरुबिन के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड वाया दोज रिसेप्टर्स बिलिरुबिन एंटर्स इनटू द सेल्स, ठीक है, बाय रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। नाउ विद इन द हेपेटोसाइट्स बिलिरुबिन इज कॉन्जुगेटेड विथ ग्लूक्यूरोनिक एसिड। क्योंकि बिलिरुबिन जो है वो वाटर इंसॉल्युबल है, तो विद इन हेपेटोसाइट्स ऑल्सो इसको वाटर सोल्यूबल बनाना पड़ता है। अब जैसे वैसे तो एल्ब्यूमिन कैरी कर लेता है बिलिरुबिन को, लेकिन विद इन द हेपेटोसाइट्स बिलिरुबिन इज कॉन्जुगेटेड विद ग्लूक्यूरोनिक एसिड बाय द एंजाइम कॉल्ड यूडीपी glucuronosyl transferase, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। So within hepatocytes bilirubin is conjugated with glucuronic acid by enzyme called UDP glucuronyl transferase. अब ये जो conjugated bilirubin है this is now water soluble, ठीक है, and this water soluble bilirubin, the conjugated bilirubin is then secreted from hepatocytes to the bile canaliculi, तो bile duct के थ्रू ये this is secreted out, ठीक है। तो bile canaliculi से ये this is drained into bile duct, तो वो जो sinusoids होते हैं उनके थ्रू ये जो
conjugated bilirubin है which is there in the bile that is drained into bile duct. ठीक है, अब now as bile passes into the gut, ये जो bile है which contains bilirubin, when it passes to the gut में क्या होता है, this conjugated bilirubin is then reduced to the urobilinogen. ठीक है, urobilinogen by bacteria which is there in the gut. ठीक है, and then this urobilinogen is excreted in the feces. ठीक है, तो ये देखा आपने, इसको मैं इसका जो एक इमेज है, पिक्चर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, फॉर इजी रिप्रेजेंटेशन. बेसिकली इसमें क्या है कि जो एल्बुमिन है दैट बिलिरुबिन इज प्रोड्यूस्ड विद इन द स्प्लीन. ठीक है, स्प्लेनोसाइट्स में बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है, तो एल्बुमिन बिलिरुबिन को बाइंड करता है और फिर उसको कैरी करता है, इट कैरीज इट टू द लिवर. लिवर में जो हेपेटोसाइट्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स के सरफेस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बिलिरुबिन को बाइंड करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज रिसेप्टर्स बिलिरुबिन एंटर्स इनटू द सेल via receptor mediated endocytosis within the hepatocytes. Then bilirubin is conjugated with the glucuronic acid by the enzyme called UDP, glucuronyl transferase. This enzyme is very important. ठीक है, ये क्या करता है, conjugate करता है बिलिरुबिन को with ग्लूक्यूरोनिक एसिड. ये जो एंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी से भी लिवर डिजीजेस होती हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. दिस एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ अब जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है दैट इज वाटर सोल्यूबल एंड देन इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द हेपेटोसाइट टू द बाइल कैनालिकुलाई व्हिच इज ड्रेन इनटू फाइनली बाइल डक्ट. वहां से फिर जब बाइल जो गट से पास होता है तो गट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, और ये जो यूरोबिलिनोजन है दैट इज फाइनली एक्सक्रीटेड इन द फीसेस. इसमें क्या होता है कि सम ऑफ मोस्ट ऑफ द यूरोबिलिनोजन इज एक्सक्रीटेड इनटू द फीसेस, बट सम ऑफ द यूरोबिलिनोजन इज रीअब्सॉर्ब्ड. It is reabsorbed and then finally it is excreted from the kidneys के through भी इसका excretion होता है. ठीक है, now some interesting fact about this urobilinogen is that urobilinogen जो है that is colorless. ठीक है, जैसे जो bilirubin है that is yellow color, even conjugated bilirubin is also yellow colored compound, पर जो urobilinogen है that is colorless, and when it is oxidized to urobilin it it gets the brown color. ठीक है, urobilinogen जो है upon oxidation forms urobilin which is a brown colored compound. तो जो हमारे feces का color brown होता है it is because of the urobilin. ठीक है, it is because of the oxidation of urobilinogen. ठीक है, so urobilin की वजह से which is a brown colored compound, feces का color जो है वो brown होता है. Now let us have a look on few figures. कुछ figures हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, तो ये मैंने R. Luxton से लिया हुआ है. ठीक है, Luxton liver functions Luxton से. तो इसमें क्या है कि this is a structure of a liver lobule. ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया है liver lobule, पर ये R. Luxton की आपके पास नोट्स है, वहां से भी आप देख सकते हैं. तो ये liver lobule है which is hexagonal in shape. इस liver lobule के बाहर there is a portal tract. तो जो मैंने फिगर आपको दिखाया था उसमें दैट इज कॉल्ड पोर्टल ट्रायड, इसको पोर्टल ट्रैक भी बोलते हैं. इसमें क्या है कि हेपेटिक आर्टरी इज देयर, पोर्टल वेन इज देयर एंड बाइल डक्ट इज देयर. ठीक है, और ये क्या है फॉर द इनफ्लो एंड आउटफ्लो. ठीक है, इनफ्लो ऑफ ब्लड, जो ब्लड इनफ्लो करता है वो पोर्टल आर्टरी और पोर्टल वेन से करता है विद इन द लिवर लॉब्यूल, और जो बाइल है दैट इज एक्सक्रीटेड आउट from the liver lobule via the bile duct. यहाँ पे क्या ये जो लंबी लंबी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस दिखाई हुई ये क्या है, these are the sheets of hepatocyte. तो ये एक सिंगल शीट जो होती है that is made up of single सेल, एक एक सेल से ईट जोड़ते हैं, तो एक एक सेल जोड़ के ये एक सिंगल शीट बनती है. So there are several sheets of hepatocytes within the lobule. ठीक है, और बिल्कुल लॉब्यूल के सेंटर में क्या है, सेंट्रल वेन है. देन जो शीट्स के बीच में जो स्पेसेस हैं दीज आर कॉल्ड साइनोसॉइड्स. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द लिवर लॉब्यूल. और नाउ दिस फिगर इज अबाउट द फ्लो ऑफ ब्लड ओवर द शीट्स ऑफ हेपेटोसाइट्स. तो जो
हिपैटोसाइट जो है, हिपैटोसाइट्स के जो शीट्स हैं वो ऐसे लीनियरली अरेंज्ड रहती हैं, ठीक है, सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और ये जो हिपैटोसाइट्स हैं इनके ऊपर ये जो ट्रायंगुलर दिखाया हुआ है ये क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। Now these receptors they bind to different kinds of receptors are there. So some receptors bind to LDL lipoproteins, some binds to glycoproteins, some binds to bilirubin. तो ये receptors जो होते हैं ये help करते हैं फॉर टेकिंग इनसाइड द मॉलिक्यूल्स। जैसे LDL को अंदर लेना है तो LDL रिसेप्टर्स होंगे, LDL would bind to the receptors and it gets internalized. तो इस तरह से ये इंटरनलाइज होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या दिखा है, ब्लड है यहाँ पे। नाउ ब्लड का जो इनफ्लो होता है दैट इज फ्रॉम हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन, और वहां से जो ऑक्सीजन और जो भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं दे एंटर इनटू द हिपैटोसाइट्स, ठीक है। तो रिसेप्टर्स की मदद से वो मॉलिक्यूल जो है वो अंदर आ जाते हैं। और ब्लड का जो फ्लो है दैट इज फ्रॉम हिपैटिक आर्टरी इन पोर्टल वेन टू द सेंट्रल वेन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक्सक्रीट आउट क्या होता है हेपेटोसाइट से, ठीक है। तो हेपेटोसाइट जो है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को अंदर ले लेते हैं और एक्सक्रीट आउट क्या करते हैं, दे एक्सक्रीट आउट बाइल एसिड्स, दे एक्सक्रीट आउट बिलिरुबिन, दे एक्सक्रीट आउट ड्रग्स। अब क्या है इसमें कि जो ड्रग्स होता है ना उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है मेनली लिवर में होता है। हम जो भी ड्रग्स ओरल रूट से हम जो भी ड्रग्स लेते हैं वो सीधा हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से हमारे लिवर के पास जाता है, लिवर में फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है और उसके बाद फिर जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, ड्रग्स के जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हमारे सर्कुलेशन में एंटर करते हैं और फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो बाइल एसिड्स, बिलिरुबिन और ड्रग्स जो है वो एक्सक्रीट आउट होते हैं हेपेटोसाइट से, ठीक है। तो यहाँ से ये कैनालिकुलर बाइल में जाके ये जो जो बाइल एसिड्स और बिलिरुबिन जो है दे बिकम पार्ट ऑफ बाइल। तो ये है। देन लेट अस हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ हीम। हीम क्या है, एक पोरफायरिन रिंग होती है, ठीक है। इट इज अ रिंग स्ट्रक्चर जिसमें कि आयरन एटम इज देयर, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है विद द नाइट्रोजन एटम्स ऑफ द 4 रिंग्स होती हैं, दे आर कोवेलेंटली बाउंड टुगेदर, ठीक है। और ये दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ हीम। अब जो हीम है वो तो रिंग स्ट्रक्चर होता है। व्हेन दिस हीम इज डिग्रेडेड इनटू बिलिरुबिन, बिलिरुबिन इज अ लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बिलिरुबिन जो है लीनियर कंपाउंड है एंड इट इज वाटर इनसोल्यूबल। नाउ बिलिरुबिन का जो कॉन्जुगेशन होता है वो लिवर के अंदर होता है और लिवर में जो कॉन्जुगेशन होता है लिवर बिलिरुबिन का वो होता है विद ग्लूक्यूरोनिक एसिड। तो ये ग्लूक्यूरोनिक एसिड जो है दैट बाइंड्स टू द बिलिरुबिन मॉलिक्यूल एट दीज टू पोजीशंस। तो ऐसा नहीं है, तो क्या होता है कि कभी एक सिंगल ग्लूक्यूरोनिक एसिड भी बाइंड कर सकता है और 2 ग्लूक्यूरोनिक एसिड मॉलिक्यूल्स भी बाइंड कर सकते हैं। सो इट कुड बी 2 मॉलिक्यूल भी बाइंड कर सकते हैं और 1 मॉलिक्यूल भी बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ये स्ट्रक्चर्स आप लोग देख लीजिएगा। नाउ अब हम देखते हैं अबाउट मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन। तो मैंने आप लोग को उसमें लिख के बताया था, डायग्रामेटिक फॉर्म में भी हम लोग देख लेते हैं अबाउट मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन। तो इसमें क्या है कि ओके तो इसमें क्या है कि आरबीसीज हैं जैसे, तो आरबीसीज का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो वहां से हीम निकल के आता है, जो हीम का आयरन है वो तो रिसाइकल हो जाता है, दैट इज रिकवर्ड। हीम जो है दैट इज डिग्रेडेड इनटू बिलिरुबिन। अब बिलिरुबिन जो है विद इन द स्प्लिनोसाइट्स, अब बिलिरुबिन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है तो इट बाइंड्स टू द एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन इसको कैरी करके लेके आता है टू द लिवर। लिवर के अंदर बिलिरुबिन की कॉन्जुगेशन होती है, ठीक है। बिलिरुबिन इज अनकॉन्जुगेटेड, तो विद इन द लिवर bilirubin is conjugated with glucuronic acid and the enzyme which conjugates it is UDP, glucuronal transferase enzyme, ठीक है। अब क्या होगा कि conjugated bilirubin बना, now it is excreted into the gut, यहाँ से निकल के गट में आता है। तो गट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे convert conjugated bilirubin to urobilinogen which is also called stercobilinogen, ठीक है। urobilinogen is also called stercobilinogen. Now this urobilinogen is colorless compound,
अब ये क्या होता है, दिस इज एनस में ही इट इज ऑक्सीडाइज टू यूरोबिलिन which is also called stercobilin. तो यूरोबिलिन जो है वो ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है, that is finally excreted out in feces. Now some of the urobilinogen is reabsorbed by the large intestine. कुछ यूरोबिलिन जो है वो reabsorb हो जाता है and some enters into enterohepatic circulation. कुछ तो recirculate हो जाता है और फिर दोबारा से निकल के आ जाता है, ठीक है. And some urobilinogen is excreted out through the kidneys. ठीक है, किडनी से एक्सक्रीट आउट होता है. तो इसमें भी यूरोबिलिन जो किडनी से एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिन अपॉन ऑक्सीडेशन व्हिच इज अ येलो कलर्ड ब्राउन कलर्ड कंपाउंड. तो यूरिन से भी ये एक्सक्रीट आउट होता है, बट वेरी लिटिल इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द यूरिन. ज्यादातर जो है वो फीसेस से ही निकल जाता है बाहर. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. Now let us have a look on the jaundice. तो jaundice क्या है? Jaundice is a yellow coloration of the skin and eyes due to hyperbilirubinemia. यानी कि आपको पता है jaundice में क्या होता है, स्किन येलो कलर की हो जाती है, आईज येलो कलर के हो जाते हैं. और ये कैसे होता है? बिलीरुबिन की जो लेवल्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है. तो वो जो बिलीरुबिन है दैट इज डिपॉजिटेड अंडर द स्किन, तो उससे येलो कलरेशन हो जाती है. तो जो नॉर्मल रेंज है टोटल बिलिरुबिन की, दैट इज फ्रॉम 0.30 milligram per deciliter to 1.20 milligram per deciliter. So remember this range of bilirubin, total bilirubin यानी कि conjugated plus unconjugated bilirubin. So the range is 0.30 milligram per deciliter to 1.2 milligram per deciliter. नाउ जो जॉन्डिस है वो तब तक एपरेंट नहीं होता जब तक कि जो लेवल्स हैं वो 2.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा ना हो जाए. तो अगर लेवल थोड़े से ज़्यादा हैं, 1.2 से थोड़े ज़्यादा हैं, 1.4, 1.5 हैं, 2 भी हैं, तो भी इतना जॉन्डिस का पता नहीं चलता. जॉन्डिस तब एपरेंट होता है जब लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी 2.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाते हैं. तो अब लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस. तो जॉन्डिस जो है दैट इज क्लासिफाइड इनटू 3 फॉर्म्स. तो 3 तरह के जॉन्डिस है. वन इज प्री हेपेटिक जॉन्डिस, द अदर वन इज हेपेटिक जॉन्डिस एंड द फोर्थ वन इज पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस. तो प्री हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है कि बिलिरुबिन का जो सिंथेसिस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. यानी अगर आरबीसीज का अगर डिग्रेडेशन ज्यादा होगा तो उससे बिलिरुबिन की सिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाती है. सो इन दैट केस बिलिरुबिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं एंड दैट इज ड्यू टू प्री हेपेटिक जॉन्डिस. तो यहाँ पे जो बिलिरुबिन के लेवल्स बढ़ते हैं, वो जो बिलिरुबिन होता है दैट इज द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, क्योंकि ये प्री हेपेटिक कंडीशन है तो इसमें लिवर का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है. तो इसमें जो लेवल्स बढ़ते हैं वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के बढ़ते हैं क्योंकि प्री हेपेटिक कंडीशन है, ठीक है. अगर माना आरबीसीज के लेवल्स बहुत ज्यादा हैं तो स्प्लिनोसाइट्स में आरबीसी की डिग्रेडेशन ज्यादा हो रही है, ठीक है. आरबीसी की डिग्रेडेशन स्प्लिनोसाइट में ज्यादा हो रही है, तो वहां पे जो बिलिरुबिन फॉर्म होता है स्प्लिनोसाइट्स में वो क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है. सो दैट इज द वन विच इज इंक्रीज्ड इन द प्री हेपेटिक जॉन्डिस. इन केस ऑफ हेपेटिक जॉन्डिस, तो अगर कोई लिवर डिजीज है, इफ देयर इज अ हिपैटोसेलुलर डिजीज, अगर हिपैटोसाइट्स में डैमेज हो रहा है, या इफ देयर इज अ कोलस्टैटिक डिजीज, यानी कि लिवर से बाइल बन तो रहा है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है बाहर, ठीक है. देयर इज अ लिवर डिजीज, तो इन दैट केस हेपेटिक जॉन्डिस अकर्स, ठीक है. इन दैट केस आल्सो बिलिरुबिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं. इस केस में जो बिलिरुबिन होता है, जो इंक्रीज होते हैं लेवल्स, वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लेवल ज्यादा बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हेपेटोसाइट्स में जो बिलिरुबिन है दैट इज कॉन्जुगेटेड, तो इसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लेवल्स बढ़ते हैं. नाउ इन केस ऑफ पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, इसमें क्या होता है कि लिवर तो ठीक रहता है लेकिन बाद में, लिवर के बाद में जो बाइल का जो फ्लो होता है दैट इज ऑब्स्ट्रक्टेड. बाइल जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है, सो देयर इज अ biliary obstruction. In that case also bilirubin levels goes up in the blood and that is post hepatic jaundice. So these are the 3 kinds of jaundice.
So now coming over to congenital hyperbilirubinemia. तो congenital है यानी कि विद बर्थ, यानी कि जैसे ही एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो जैसे ही बच्चा जन्म लेगा तभी उसको हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा, यानी उसके जो ब्लड में बिलिरुबिन लेवल्स होंगे वो बहुत हाई होंगे. सो congenital hyperbilirubinemia happens due to inborn errors of bilirubin metabolism. ठीक है, तो what happens in inborn errors of bilirubin metabolism? There is reduced or lack of activity of enzymes which are involved in bilirubin metabolism. ठीक है, तो इनबॉर्न एरर्स ऑफ बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि वो एंजाइम्स जो कि बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहते हैं उनकी जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो चुकी होती है या बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है. ओके, तो इसमें क्या है कि देयर आर 4 डिजीजेस, 4 inborn errors of bilirubin metabolism. We have this Gilbert's disease, we have Crigler-Najjar syndrome, we have Dublin-Johnson syndrome, and we have Rotor syndrome. तो 4 तरह के diseases हैं which are inborn errors of bilirubin metabolism. So what happens in Gilbert's disease? तो जो गिलबर्ट डिजीज होती है उसमें एंजाइम मैंने आपको बताया था यूडीपी ग्लूक्यूरोनल ट्रांसफरेज. दिस एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसकी डेफिशिएंसी से इसकी जो एक्टिविटी होती है वो रिड्यूस हो चुकी होती है. तो इसकी डेफिशिएंसी से गिलबर्ट डिजीज होती है जिसमें कि जो बच्चा होता है उसको इसके जो बिलिरुबिन लेवल्स होते हैं वो हाई होते हैं. सो दिस इज नॉट अ वेरी सीरियस डिजीज. तो इसमें जो लेवल्स होते हैं वो हाई होते हैं लेकिन इतने भी हाई नहीं होते, वो मैनेजेबल होता है. ठीक है, बट दिस क्रिगलर नज्जर सिंड्रोम जो होता है दिस इज अ वेरी डेंजरस डिजीज. तो इसमें क्या होता है कि यूडीपी ग्लूक्यूरोनल ट्रांसफरेज जो है बिल्कुल भी उसकी एक्टिविटी नहीं होती है. ठीक है, जीन इज नॉट एट ऑल एक्टिव. दिस एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस्ड. सो इन दैट केस जो बिलिरुबिन है उसकी कॉन्जुगेशन नहीं हो पाती है. ठीक है, तो उसमें जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसके लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल्स होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, दे आर लिपिड सॉल्युबल. और ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होते हैं दे कैन पास द ब्लड ब्रेन बैरियर. तो बच्चे में ब्लड ब्रेन बैरियर को ये पास कर जाते हैं. ये जो बिलिरुबिन लेवल्स जो बिलिरुबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्रॉस कर जाते हैं, दे गो टू द ब्रेन. और ब्रेन के लिए जो बिलिरुबिन लेवल्स होते हैं दे आर वेरी वेरी टॉक्सिक. तो ये दे एक्चुअली डैमेज द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, तो दिस डिजीज इज वेरी फेटल डिजीज, क्रिगलर नजर सिंड्रोम. उसके अलावा वी हैव ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड रोटर सिंड्रोम. ये बहुत रेयर डिसऑर्डर्स होते हैं. इसमें बेसिकली देयर इज डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन फ्रॉम द हेपेटोसाइट्स. इसमें बिलिरुबिन की जो एक्सक्रीशन होता है वो डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कॉन्जेनिटल हाइपर बिलिरुबिनीमिया. यहाँ पे मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि फीटल स्टेज में क्या होता है. इन यूटेरो वहाँ भी जो फीटस है उसमें भी आरबीसीज का डैमेज होता है. तो जब आरबीसीज का डैमेज होता है तो उसमें भी फीटस में भी बिलिरुबिन फॉर्म होते हैं. तो जो बिलिरुबिन फीटस के अंदर फॉर्म होता है वो लिवर के पास ना जाके वो प्लेसेंटा के थ्रू बाहर आ जाता है. ठीक है, तो और फिर वो जो मैटरनल मदर का जो लिवर है वो फिर उसको एक्सक्रीट आउट करता है. फीटल स्टेज में ऐसा होता है. जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म के बाद लिवर जो है वो अभी उतना डेवलप नहीं हुआ होता है. ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है. जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको उनके जो बिलिरुबिन लेवल्स होते हैं वो नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा रहते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ पे जो बच्चे हैं वो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं. ठीक है, तो जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं जो अपने टर्म कंप्लीट करने से पहले हो गए होते हैं, 2 हफ्ता पहले 3 हफ्ता पहले, तो उसमें क्या होता है कि लिवर क्योंकि अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है
तो जो आरबीसीज के डैमेज होने से जो बिलिरुबिन फॉर्म होता है वो लिवर उसको कॉन्जुगेट नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे बिलिरुबिन लेवल्स तो हाई हो जाते हैं। तो वहाँ पे फिर बच्चे को कलर थेरेपी दी जाती है, उन्हें एक चैम्बर में रखा जाता है, वहाँ पे एक ब्लू ब्लू कलर की लाइट में बच्चे को रखा जाता है, दैट इज कलर थेरेपी। ठीक है, और उससे दैट एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ द हाई bilirubin levels in the baby. Now coming over to liver diseases. So liver diseases में क्या है? Liver diseases जो हैं that is nothing but damage of the hepatocytes. तो अगर हेपेटोसाइट्स को कोई डैमेज होता है so that result into liver diseases. So what are the causes of liver diseases? तो various causes हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे liver damage हो सकता है. So it could be due to viral infections जैसे hepatitis B, ABC infection, then Epstein-Barr virus infection, then cytomegalovirus infection, then Coxsackie virus infection. Different kinds of viruses. Then different kinds of drugs can cause the hepatocellular disease. Like paracetamol can damage the liver, isoniazid, amoxicillin, methotrexate, and others. Chemicals such as carbon tetrachloride can damage the liver. Then aflatoxin can damage the liver. Then alcohol also can damage the liver. So these are various causes of liver damage. ठीक है, ये सब जो कारण है, वायरल इन्फेक्शंस, ड्रग्स, केमिकल्स, अल्कोहल कंजम्पशंस, ये सब से लिवर डिजीजेस हो सकती हैं. ओके, सो मूविंग फर्दर. अच्छा, ये सब के अलावा अदर थिंग्स आर कोलेस्टेटिक चेंजेस. जो कोलेस्टेटिक चेंजेस होते हैं उससे भी लिवर डिजीज हो सकती है. ठीक है, तो जो कोलेस्टेटिक चेंजेस हैं जिनसे कि लिवर डिजीज हो सकती है वो दो तरह के होते हैं, इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, तो अगर विद इन द लिवर इफ देयर इज एक्यूट हेपेटोसेलुलर डैमेज. ठीक है ना, कोलेस्टेटिक से मतलब समझते हो ना आप. कोलेस्टेटिक चेंजेस का मतलब है कि जो बाइल एसिड बन रहा है लिवर में दैट इज नॉट किसी तरह से वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है. ठीक है, वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा. तो इसमें दो कारण हो सकते हैं, इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन. तो इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि विद इन द लिवर जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है. तो विद इन द लिवर क्या हो सकता है, दे कुड बी एक्यूट हेपेटोसेलुलर डैमेज. ठीक है, कोई अचानक से टॉक्सिसिटी हो गई और उससे हेपेटोसेलुलर डैमेज हो गया. ठीक है, एक्यूट हेपेटोसेलुलर डैमेज, तो उसकी वजह से इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. देन देयर इज स्ट्रक्चरल लिवर डैमेज, तो लिवर को कोई ट्रॉमा हो गया. देन देयर इज प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस. ये उसके अलावा एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है जिसमें गॉल स्टोन्स बहुत कॉमन कारण है. गॉल ब्लड में जब स्टोन्स होते हैं तो उसकी वजह से भी कोलेस्टेटिक चेंजेस होते हैं. ठीक है, दैट कैन लीड टू लिवर डिजीज. देन पेंक्रियाटाइटिस की वजह से हो सकता है. देन इफ देयर इज अ मैलिग्नेंसी आल्सो कोलेस्टेटिक चेंजेस हो सकते हैं जिससे कि लिवर डिजीज कॉज हो सकती है. ठीक है, सो इसी में फर्दर तो लिवर डिजीज अगर किसी को है तो कैसे पता चलेगा कि उसको लिवर डिजीज है. व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लिवर डिजीज. तो लिवर डिजीज में क्या होता है, स्किन एंड आईज आर अपीयर. ये तो जॉन्डिस होता है तो उसमें स्किन येलो हो जाती है, आईज येलो हो जाती हैं. उसके अलावा जो है एब्डोमिनल पेन एंड स्वेलिंग, अगर पेट में दर्द है और स्वेलिंग है, दैट इज वन थिंग. स्वेलिंग इन द लेग्स एंड एंकल्स, अगर लेग्स और एंकल्स में स्वेलिंग है तो वो भी एक एक तरह का साइन है कि लिवर डिजीज हो सकती है. और इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, लिवर जो है दैट सिंथेसाइजेज एल्ब्यूमिन प्रोटीन. लिवर में एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनते हैं और जो एल्ब्यूमिन है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस. ठीक है, ब्लड में ऑस्मोसिस जो है वो उसको मेंटेन करके रखता है. ठीक है, ताकि वो लीकेज ना हो जाए ब्लड का. और फिर ऑस्मोसिस को मेंटेन करने के लिए एल्ब्यूमिन की जरूरत पड़ती है. एल्ब्यूमिन की कमी होने की वजह से एडिमा हो सकता है लेग्स और एंकल्स में.
ठीक, एक ये चीज। उसके अलावा इची स्किन इज अनदर वेरी अपरेंट। अगर स्किन में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है तो इसका मतलब है कि लिवर डिजीज हो सकती है। और इचिंग क्यों होती है? क्योंकि जो बाइल एसिड्स होते हैं वो स्किन के अंदर जमा हो जाते हैं, तो उनकी जमा होने की वजह से स्किन में इचिंग होती है। देन इफ देयर इज डार्क यूरिन कलर, दिस इज वन थिंग। पेल स्टूल कलर अगर आ रहा है तो उसमें भी लिवर डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर लिवर डिजीज होगी तो जो यूरोबिलिरुबिन जो है वो उसका एक्सक्रीशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। ठीक है, जो बिलिरुबिन का जो एक्सक्रीशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो जो स्टूल का कलर है वो पीला पीला रंग का होगा। सो दिस इज वन थिंग। फिर क्योंकि लिवर जो है सेंट्रल मेटाबॉलिक ऑर्गन है, तो अगर लिवर में डैमेज है, लिवर डिजीज है अगर, तो उससे क्रॉनिक फटीग होगी। देयर इज nausea एंड वॉमिटिंग, देयर इज लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, हमें पता है। कभी हमें भूख नहीं लगती तो लोग कहते हैं कि आप लिवर टॉनिक ले लीजिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लिवर में प्रॉब्लम होगी, तो उसकी वजह से दिस लॉस ऑफ एपेटाइट। नाउ देयर इज टेंडेंसी टू ब्रूस इजीली। अगर लिवर डिजीज है तो ब्रूसेस बहुत इजीली हो जाते हैं, बिकॉज लिवर जो है दे फॉर्म क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह ये बनाते हैं, तो उनकी कमी हो जाती है क्लॉटिंग फैक्टर्स की, तो उसकी वजह से भी ब्रूसेस जो है वो इजीली, वुंड्स जो है वो इजीली हील नहीं होते हैं। ठीक है, और ब्रूसेस जल्दी इजीली हो जाते हैं। सो तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पता चलेगा कि ये तो साइंस एंड सिम्टम्स हो गए। तो क्लिनिकली कैसे पता चलेगा कि लिवर डिजीज है? तो अगर लिवर डिजीज होगी तो उसमें क्या होगा कि कुछ पैरामीटर्स जो है वो इंक्रीज होंगे, जैसे कि बिलिरुबिन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ लिवर डिजीज। देन इन केस ऑफ हेपेटिक लिवर डिजीज, हेपेटिक एंजाइम्स दे आर इंक्रीज्ड, जैसे एसजीओटी, एसजीपीटी, अल्कालाइन फॉस्फेटेज वगैरह, ये जो लेवल्स है इनका बढ़ जाता है। सिवियर डिजीज में क्या होता है, एल्ब्यूमिन लेवल्स भी डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि एल्ब्यूमिन आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर। तो एल्ब्यूमिन जब सिंथेसाइज नहीं होता, उनका जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है ब्लड में। सो दीज आर द क्लिनिकल parameters which tells about the liver disease. Function tests, these are also known as liver panel or liver profile. These are blood tests that measure different enzymes, proteins, and other substances made by the liver. These tests check the overall health of your liver. Now, these are the various parameters which are there in the liver function test, and these are albumin, total protein, alkaline phosphatase, like liver enzymes like alkaline phosphatase, alanine transaminase, aspartate transaminase, and gamma glutamyl transferase, and bilirubin. Now, apart from these are the main parameters which are measured in liver function test. But apart from this, we have lactate dehydrogenase also and prothrombin time also. These two parameters are also at times used as a part of liver function test. Now, albumin, as you all know, that albumin is a protein which is synthesized within the liver. So, if liver is damaged, if there's some problem with the liver, albumin won't be synthesized by the liver, so levels of albumin would decrease. Now, the enzymes which are synthesized in liver, which are synthesized in the hepatocytes, इनके भी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं जब लिवर डैमेज होता है। ठीक है, जब लिवर डैमेज होता है तो क्योंकि ये जो एंजाइम्स हैं ये हिपेटोसाइट्स के अंदर फंक्शन करते हैं, तो जब हिपेटोसाइट्स का डैमेज होता है तो ये निकल के बाहर ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड में इनका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ओके, एंड सेम इज केस विद द बिलिरुबिन। बिलिरुबिन भी दैट इज मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, और जब लिवर डैमेज होता है तो बिलिरुबिन भी ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, इसके आइसोएंजाइम्स होते हैं, तो एक आइसोएंजाइम है जो लिवर में सिंथेसाइज होता है, तो जब लिवर डैमेज होता है तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस जो लिवर वाला आइसोएंजाइम है वो भी बढ़ जाता है ब्लड में। उसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है
दैट इज ऑल्सो मेजर्ड। तो उसमें क्या है कि जो लिवर है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स सिंथेसाइज होते हैं। तो जब लिवर डैमेज होता है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाते हैं, तो उससे प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो दैट इज मेजर्ड। तो उसमें क्या है कि जो ब्लीडिंग टाइम है वो बढ़ जाता है, क्लॉटिंग टाइम भी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो this is all about liver function test. Now I'm going to show you a table which is given in the Luxton. So let us have a look on this table from Luxton. This table shows general changes seen in tests for liver function for different conditions. So what happens in different conditions? What happens to the levels of different parameters? So in hemolytic disease, you know hemolytic disease, in hemolytic disease RBC lysis increases. ठीक है, इसमें RBCs का lysis बढ़ जाता है, तो उससे बिलिरुबिन का सिंथेसिस भी बढ़ जाता है स्प्लीन में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है हेमोलिटिक डिजीज में बिलिरुबिन के लेवल्स हाई होते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रांसएमिनेजेस, एल्कलाइन फॉस्फेटेस, इनके जो लेवल्स होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं, इनके लेवल्स नहीं बढ़ते, क्योंकि हीमोलिटिक डिजीज है, लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिवर नॉर्मल है, तो लिवर के एंजाइम्स भी नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, बिलिरुबिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं काफी, तो जॉन्डिस होता है। अब यहाँ पे यूरिनरी बिलिरुबिन जो है वो नेगेटिव आता है। ठीक है, तो यूरिन में बिलिरुबिन नहीं निकलता है। ठीक है, बढ़ जाता है, ब्लड में हाई होता है बिलिरुबिन लेवल्स, लेकिन यूरिन में नहीं निकलते हैं। वहीं पे जो हेपेटाइटिस है, ठीक है, हेपेटाइटिस में क्या होता है, लिवर इज डैमेज्ड, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। यहाँ पे क्या होता है कि बिलिरुबिन के लेवल्स बढ़ते हैं, ट्रांसएमिनेजेस के लेवल्स बहुत हाई होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एल्कलाइन फॉस्फेटेस के जो लेवल्स होते हैं वो हाई होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं होते। ठीक है, ट्रांसएमिनेजेस के लेवल्स बहुत हाई होते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेस के थोड़े हाई होते हैं। इसमें जो यूरिनरी बिलिरुबिन है वो पॉजिटिव आता है, यानी कि जो बिलिरुबिन है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, वहीं पे थर्ड कंडीशन है कोलेस्टेटिक डिजीज। कोलेस्टेटिक डिजीज में मैंने आपको बोला कि लिवर में से बाइल बनता है, लेकिन वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है। ठीक है, ड्यू टू स्टोन्स, ड्यू टू ट्यूमर्स, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन होगा तो उसमें कोलेस्टेटिक डिजीज होगी, तो बाइल जो है वो उसका जो आउटफ्लो है वो रुकता है, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो उस इन कोलेस्टेटिक डिजीज बिलिरुबिन के लेवल्स बहुत हाई होते हैं, बहुत हाई। ठीक है, लेकिन ट्रांसएमिनेजेस के जो लेवल्स हैं वो हाई होते हैं, लेकिन उतने हाई नहीं होते। एल्कलाइन फॉस्फेटेस के लेवल्स बहुत हाई होते हैं, और इन दिस केस ऑल्सो यूरिन में जो बिलिरुबिन है वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, बिलिरुबिन जो नॉर्मली बिलिरुबिन कभी भी यूरिन में पास आउट नहीं होता है, इट इज यूरोबिलिनोजन विच इज पास्ड आउट, यूरिन बिलिरुबिन कभी नहीं पास होता, लेकिन इन कंडीशंस में, इन केस ऑफ हेपेटाइटिस, इन केस ऑफ कोलेस्टेटिक डिजीज, बिलिरुबिन पास आउट होता है यूरिन से। ठीक है, तो अब हेमोलिटिक डिजीज में क्यों पास आउट नहीं होता है, और हेपेटाइटिस और कोलेस्टेटिक डिजीज में क्यों पास आउट होता है, इसके पीछे रीजन है। इन केस ऑफ हेमोलिटिक डिजीज बिलिरुबिन का सिंथेसिस प्लेनोसाइट में, स्प्लीन में बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा हीमोलिसिस, ज्यादा आरबीसी लाइसिस हो रहा होता है, तो ज्यादा हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, तो ज्यादा बिलिरुबिन बढ़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बिलिरुबिन बढ़ता है दैट इज द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, वो इतना ज्यादा होता है कि जो एल्ब्यूमिन कम पड़ जाता है उसको कैरी करने के लिए, तो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो बढ़ जाता है, तो बहुत ज्यादा हिमोलिसिस होती है, तो बहुत ज्यादा बिलिरुबिन जो है वो फॉर्म होता है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लेवल्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अब जो बिलिरुबिन होता है, बिकॉज ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो ये यूरिन में पास आउट नहीं होता है, दैट्स व्हाई यूरिनरी बिलिरुबिन जो है वो नेगेटिव आता है। ठीक है, बिकॉज दिस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज लिपिड soluble, it is water insoluble, तो ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता है, तो इसलिए नेगेटिव रिपोर्ट आती है यूरिनरी बिलिरुबिन की। अब वही हेपेटाइटिस में, क्योंकि लिवर डैमेज होता है, ठीक है, सेल्स डैमेज होते हैं, तो ट्रांसएमिनेजेस हेपेटोसाइट्स के अंदर होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, और वहीं उनका फंक्शन होता है,
तो जब सेल्स डैमेज होते हैं हेपेटोसाइट्स, तो ये ट्रांसएमिनेजेस जो है वो बाहर निकल आते हैं, तो ब्लड में इनका लेवल बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, वहीं पे एल्कलाइन फॉस्फेटेज का भी लेवल्स बढ़ता है, लेकिन उतना हाई नहीं होता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेजेस जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, हेपेटोसाइट्स के बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज हेपेटोसाइट्स में बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं हेपेटोसाइट्स के। ठीक है, तो वो दो हेपेटोसाइट्स के बीच में स्पेस होता है, दैट इज बाइल, उसको कहते हैं बाइल कैनालिक्यूलस। तो उस साइड पे ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज प्रेजेंट होते हैं। लेट मी शो यू वन पिक्चर हियर। जैसे ये है, ये इंटरनेट से मैं निकाल के दे रही हूँ आपको। ये दो पिंक कलर की दो हेपेटोसाइट्स हैं, दिस इज वन एंड दिस इज अनदर वन। तो इसमें क्या है कि ये जो दो सेल्स के बीच में ये स्पेस है विच इज कॉल्ड बाइल कैनालिक्यूलस। तो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है सेल्स की, इसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज प्रेजेंट होते हैं। हेपेटोसाइट की इस मेम्ब्रेन में एल्कलाइन फॉस्फेटेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होते हैं। तो in case of in case of हेपेटाइटिस, एल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल बढ़ते उतने नहीं बढ़ते हैं लेकिन। ठीक है, अच्छा, अब जो कोलेस्टेटिक डिजीज होती है उसमें बिलिरुबिन के लेवल्स बहुत हाई होते हैं। ट्रांसएमिनेजेस के लेवल उतने नहीं बढ़ते हैं लेकिन उतना नहीं बढ़ते हैं क्योंकि लिवर में डैमेज नहीं है। देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल सॉल्ट जो होते हैं उनका, या जो बाइल है जूस है उसका उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसका आउटफ्लो नहीं हो पा रहा है, लेकिन लिवर इज नॉर्मल। तो कुछ डैमेज होता है तो उसमें ट्रांसएमिनेजेस थोड़े बढ़ते हैं। एल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कोलेस्टेटिक डिजीज में कि जो बाइल का जो आउटफ्लो होता है वो ब्लॉक होता है। फॉर एग्जांपल अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होंगे तो जो बाइल जूस जो गॉल ब्लैडर में जाना होता है उसका ऑब्स्ट्रक्शन होगा। जब उसका ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जब वो जूस नहीं जा पाता है, उसका एक नॉर्मल एक फ्लो है, जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो एक बैक प्रेशर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो फ्लूइड है वो आगे की तरफ जा रहा है लेकिन आगे फिर वो उसको उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है स्टोन की वजह से सपोज, तो फिर वो उसमें फ्लूइड में एक बैक प्रेशर प्रोड्यूस होता है। तो बैक प्रेशर की वजह से लिवर सेल्स को भी डैमेज होता है। ठीक है, तो वही जो बाइल कैनालिक्यूलाई मैंने बोला ना, बाइल कैनालिक्यूलाई जो है वहां उसमें यहाँ पे इस मेम्ब्रेन पे यहाँ पे एल्कलाइन फॉस्फेटेज प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो बैक प्रेशर जब आता है, ठीक है, ये जो बाइल कैनालिक्यूलाई जब बैक प्रेशर जब आता है तो उससे फिर ये जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है ये निकल के मेम्ब्रेन से ब्लड में आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ लिवर हेपेटोसाइट्स को भी डैमेज होता है जिसकी वजह से ट्रांसएमिनेजेस भी बढ़ते हैं, लेकिन ज्यादा एल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल्स बढ़ते हैं। ठीक है, और वहीं पे क्योंकि जो जो बाइल जो बाइल है उसमें जो मेन कंपोजिशन होती है वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की होती है। ठीक है, बाइल में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है तो उसके लेवल्स बढ़ते हैं, तो बिकॉज इट इज वाटर soluble तो इट कम्स आउट इन द यूरिन। सो आई होप इट इज क्लियर। Now coming over to liver cirrhosis. अब cirrhosis जो है it is a end stage liver disease. तो liver disease होती है और जब वो progress कर जाती है so it progress into cirrhosis. So cirrhosis is a condition in which your liver is scarred and permanently damaged. ठीक है, तो cirrhosis में क्या होता है कि liver जो है वो permanently damage हो जाता है। तो वो बेसिकली cirrhosis जो है irreversible condition है। So इसमें क्या होता है, scar tissue replaces healthy liver tissue and prevents your liver from working normally. As cirrhosis gets worse, your liver begins to fail. तो जनरली क्या होता है कि जो cirrhosis होता है वो liver disease का एक आउटकम होता है।
ठीक है, तो बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं सिरोसिस होने के। ठीक है, तो अगर किसी वजह से लिवर डिजीज होती है तो वो आगे प्रोग्रेस करती है सिरोसिस में। ठीक है, और सिरोसिस के बाद फिर फाइनली जो लिवर है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और उसके बाद फिर डेथ हो जाती है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम लोगों को चोट लगती है, ठीक है, तो चोट लगती है तो चोट भरती है, फिर फाइब्रस टिश्यू जो होता है वो उसे कवर करता है चोट को। ठीक है, तो यहाँ लिवर में क्या होता है, लिवर में डैमेज होता है और वहां पे जो स्कार टिश्यू होता है वो आके डिपॉजिट हो जाता है लिवर में। ठीक है, तो फाइब्रस टिश्यू जो है, स्कार टिश्यू जो है, इट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द लिवर और फिर वो जो स्कार टिश्यू होता है वो लिवर की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, तो लिवर जो है वो नॉर्मली काम नहीं कर पाता है क्योंकि जो स्कार टिश्यू है, जो फाइब्रस टिश्यू है, वो रिप्लेस कर देता है हेल्दी टिश्यूज को, हेल्दी लिवर टिश्यू को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि द बायोकेमिकल पिक्चर ऑफ लिवर सिरोसिस इज दैट लिवर अंडरगोज cholestatic changes. ठीक है, there is increased bilirubin. There are increased levels of SGPT, SGOT, alkaline phosphatase, and other enzyme. These are the liver enzymes. तो इनका भी लेवल बढ़ जाता है. Then there is a drop in the albumin levels. ठीक है, there is a drop in the albumin levels. यहाँ increase लिखा हुआ है, and this is wrong. There is a drop in the albumin levels. ठीक है, in case of liver cirrhosis. Now, what is alcoholic liver disease? ठीक है, तो ये तो था अबाउट लिवर सिरोसिस। ठीक है, तो लिवर सिरोसिस जो है वो उसके कारण कई हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पे कारण कोई ड्रग भी हो सकता है। लिवर सिरोसिस का कारण कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है। देयर कुड बी हेपाटोटॉक्सिक ड्रग, देयर कुड बी, और जो अल्कोहल कंजम्पशन है ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा कारण है लिवर सिरोसिस का। नाउ कमिंग ओवर टू अल्कोहलिक लिवर डिजीज। तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज में क्या होता है, लिवर डिजीज विच हैपेंस ड्यू टू ह्यूज अल्कोहल कंजम्पशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा शराब अल्कोहल का कंजम्पशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट लीड्स टू अल्कोहलिक लिवर डिजीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है अल्कोहलिक लिवर डिजीज में, इसमें भी सिरोसिस होता है। ठीक है, ये होता है एंड स्टेज, जब बहुत ज़्यादा डिजीज प्रोग्रेस कर जाती है तो सिरोसिस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि द मार्कर ऑफ अल्कोहल अब्यूज इज गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज। ठीक है, दिस इज अ लिवर एंजाइम, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज। तो जो लोग कम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उनके ब्लड में गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, दिस इज अ साइन ऑफ अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, अगर कोई इंसान अगर रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, उसको अभी डिजीज नहीं हुई है लेकिन वो रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो उसके ब्लड में गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज एंजाइम के जो लेवल्स होंगे वो ज्यादा होंगे, तो इज अ मार्कर ऑफ अल्कोहल अब्यूज। लेकिन अगर कोई कंज्यूम करना छोड़ता नहीं है, हैवी अमाउंट में अगर अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, सो दैट उससे क्या होगा, पहले तो होगी फैटी लिवर डिजीज, पहले तो लिवर फैटी हो जाएगा। ठीक है, then the fatty liver leads to hepatitis. There is damage of the hepatocytes, so उससे inflammation हो जाएगी लिवर में, hepatitis हो जाएगी। एंड inflammation के बाद क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू जो होता है वो रिप्लेस कर देता है हेल्दी सेल्स को, उससे सिरोसिस हो जाएगा। ठीक है, एंड सिरोसिस इज अ फाइनल स्टेज और एंड स्टेज लिवर डिजीज। So this is about alcoholic liver disease. Okay.